नेक्स्ट टॉपिक है सेल्स। ठीक है बेटा, सेल्स। सेल में सबसे पहले क्या आएगा? एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। यस और नो? यस सर। इसमें सेल में एक वर्ड आएगा ई, दैट इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। इसकी डेफिनेशन क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of the cell when the cell is in open circuit. The maximum potential difference across the terminals of the cell when the cell is in the open circuit. When the cell is in open circuit. एक वर्ड आएगा V. V is terminal voltage. V is terminal voltage. जैसे बेटा एक सेल है, अगर मैं इससे सप्लाई नहीं दे रहा तो ये इसकी ईएमएफ है। बट अगर मैं इसको किसी डाल दूं, जैसे घड़ी में डाल दूं, टॉय में डाल दूं, तो क्या बन जाएगी? टर्मिनल वोल्टेज बन जाएगी। ठीक है? Yes. इट विल टर्मिनल Yes. वोल्टेज। तो देखें, टर्मिनल वोल्टेज, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल when the cell is in open circuit. When the cell is in open circuit. When the cell is in the closed circuit. I repeat, terminal voltage, the potential difference across the terminals of the cell when the cell is in closed circuit. When the cell is in closed circuit. जो हमारी टर्मिनल वोल्टेज है वो हमेशा ईएमएफ से कम होगी। जो हमारी टर्मिनल वोल्टेज है बेटे वो हमेशा ईएमएफ से कम होगी। ई माइनस आई आर आएगा वी का फॉर्मूला। V is E minus IR. V denotes terminal voltage. E for EMF. ये जो IR है ये लॉस इन EMF, लॉस इन EMF due to internal resistance of the cell. Loss in EMF due to internal resistance of the cell. Loss in EMF due to internal resistance of the cell. सिद्धार्थ क्लियर है बेटे? Small r denotes internal resistance of cell. Small r किसको नोट कर रहा है? Internal resistance cell की। Small r denotes internal resistance of cell. अब देख, ये हमारा सेल है अगर, तो इलेक्ट्रोड डाल दे, कैथोड और एक एनोड। एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा। यस सुनो बेटा, तो अगर यहाँ पे बल्ब लगा दिया तो सर्किट यहाँ पे तो पूरा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में कौन मूव करता है? आयंस। दे कंप्लीट द सर्किट। यस और नो?
चेक करो एनोड कैथोड, यहाँ पे कौन सर्किट कंप्लीट कर रहा है? आयंस कंप्लीट द सर्किट। ठीक है बेटा जी। इन एन इलेक्ट्रोलाइट द आयंस कंप्लीट द सर्किट। In an electrolyte, the ions complete the circuit. Now, the internal resistance, लिखे आगे, the internal resistance of the cell is due to the internal resistance of the cell is due to the restriction offered is due to restriction offered to the movement of ions, restriction offered to the movement of ions in an electrolyte solution, in an electrolyte solution. On what factors? On what factors the value of internal resistance depends? On what factors the value of internal resistance depends? लिखे the internal resistance depends upon number one, nature of electrolyte. Nature of electrolyte. Number two, nature of electrolyte. Number two, distance between the electrodes. Distance between the electrodes. ठीक है? Number three, area of the electrodes. Area of the electrodes. Number four, temperature.
नंबर 4 टेम्परेचर। तो तीन चीज, चार चीजें होगी। जैसे वहां था ना नेचर, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, यहाँ पे भी आ जाएगा डिस्टेंस इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। यहाँ लिख लो एक ऑनलाइन। टू इंक्रीज द एरिया, टू इंक्रीज द एरिया we use cylindrical electrodes, we use cylindrical electrodes, I repeat, to increase the area we use cylindrical electrodes, so that the resistance decreases, so that the resistance decreases। ठीक है। ना नेक्स्ट लिखो जी, अब एक नोट डाल के लिखना। द टर्मिनल वोल्टेज is greater than the EMF, the terminal voltage is greater than the EMF only while charging। V equal to E plus IR, ये यार यूज करते हैं only while charging। ठीक है, only while charging। सर चार्जिंग करते हुए अगर 1.5 वोल्ट के सेल को चार्ज करना है तो हो सकता है उसमें मैं 1.6 लगाऊं, क्योंकि 0.1 लॉस आ जाएगा। ठीक है बेटा जी। तो V इक्वल टू E प्लस आई आर आ जाएगा सिर्फ चार्जिंग करते वक्त, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो ये सेल है इसकी इंटरसेंस E, R ऐसे लिख देते हैं। कई जगह आपको ऐसा भी मिलेगा, E R, ये भी सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। E, R, they both represent the same thing। ठीक है ना, नोट। और सबसे इंपॉर्टेंट, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R are always joined in series। जैसे E, R और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, ये स्मॉलर और कैपिटल R, दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज जॉइंड इन सीरीज। तो नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी? कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो आई का फॉर्मूला क्या आएगा?
E upon R plus R. इसके क्रॉस वोल्टेज ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर यूज करेंगे, ठीक है। वी विल यूज V इक्वल टू आई आर। ठीक है बेटा जी, रब कर दूं। हरजोत क्लियर हो रहा है बेटे। करंट का फॉर्मूला क्या आएगा? ई अपॉन आर प्लस आर, टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, हमेशा सीरीज में। यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज वी इक्वल टू आई आर निकाल सकते हैं। रब कर दूं सारा। अब मेरे को ड्राइव करनी है, टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर स्मॉल आर। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर स्मॉल आर। अब देख, मेरे पास v का फॉर्मूला क्या है? e माइनस आई आर। आई इट इज e अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। v इक्वल टू e माइनस e अपॉन आर प्लस आर। e कॉमन, 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन आर प्लस आर। चेक करो कोई दिक्कत? v इक्वल टू e कॉमन, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस आर माइनस स्मॉल आर, निकटा। v इक्वल टू e कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। चेक करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। कैपिटल आर प्लस आर बाय कैपिटल आर इज ई बाय वी। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर बाय आर प्लस आर बाय कैपिटल आर इज ई बाय वी। 1 प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इट इज ई बाय वी। उठा के ले जा, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर ई बाय वी माइनस 1। इसको उठा के लेके जाओ, तो स्मॉल आर ई बाय वी माइनस 1 into capital R. Last answer. A very, very important relation. चेक करो, हो गया डेरिवेशन पूरा। तो स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या है? ई अपॉन वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर।
कर दो बोर्ड क्लीन, हो गया मेरे बच्चे? Yes, sir. नेक्स्ट आता है मेरे सिलेबस में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। सबसे पहले सीरीज 1 2 कैपिटल आर ई कॉमा स्मॉल आर n cells in series. Let n cells each of EMF E and internal resistance small r. Let n cells each of EMF E let n cells each of EMF E and internal resistance small r are joined in series to an external resistance to an external resistance of capital R. अब टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी मेरे बच्चे? Capital R plus R plus R n टाइम्स, है ना? अगर तो थोड़ा और डिटेल में लिखता तो ऐसे लिख सकता हूं, R plus R plus R plus 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 n टाइम्स, इट इज n r। इक्विवेलेंट कितनी बन गई? n r प्लस कैपिटल R, n r प्लस कैपिटल R। नेट ईएमएफ कितनी आ गई? इट इज E प्लस E प्लस 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 n टाइम्स, इट इज n टाइम्स E। तो I का जो फॉर्मूला बना वो बना n टाइम्स E n r प्लस R, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। आगे लास्ट आंसर सीरीज का रेजिस्ट करंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसका केस बनाए बेटा जी, बता दो यार हो गया कि नहीं हुआ? Yes, हो sir, done. यस सर हो गए। ओके, अब देख सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। इफ इंटरनल रेजिस्टेंस is large, that is small r is greater than capital R, small r बड़ा है तो किसको इग्नोर करेंगे? स्मॉल r को के कैपिटल R को?
जो छोटी Capital R. कैपिटल आर को इग्नोर कर देते, छोटी इग्नोर कर देते हैं, तो आई क्या बना, n टाइम्स ई अपॉन n टाइम्स स्मॉल आर, ये कटा, इट इज ई बाय स्मॉल आर। अब देख, मैंने n सेल्स लगाए, करंट किसके कारण है, सिर्फ एक सेल के कारण, यस और नो, देयरफॉर द करंट in a circuit is only due to one cell. Therefore, n minus 1 cells are of no use. N minus 1 cells are of no use. So therefore, if the cells have high internal resistance, they are not preferred to be joined in series. They are not preferred to be joined in series. Because cells have high internal resistance, they are not preferred to be joined in series. If small and less than capital R, तो I क्या हो जाएगा, n e upon r, that is current will be n times due to single cell. Therefore, if the cells have low internal resistance, they are preferred to be joined in series. They are preferred to be joined in series. ठीक है, अगर सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस हाई है तो हम उनको सीरीज में नहीं जोड़ेंगे, और अगर सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस लो है तब हम उनको सीरीज में जोड़ेंगे। हो गया नोट डाउन बेटा जी? Yes, sir. Yes, sir.
करे बेटा आगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, Yes, if sir. the internal resistance is large, small r is greater than capital R. ठीक है, I is Ne upon Nr, E upon R. The current in a circuit is only due to one cell. Therefore, बाकी के जो n minus वन cells है, उनका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, they are of no use. They are of no use. ठीक है, if therefore the cells have high internal resistance, they are not preferred to be joined in series. Clear? Yes, sir. No. If small r is less than capital R, I is Ne by R. Current will be n times due to current due to single cell. So if the cells have low internal resistance, they are preferred to be joined in series. अभी 2 मिनट में ज्वाइन कर लो, फिर से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें।